Rajasthan Excise Act 1950, Act number 2 of the 1950, an assent has been obtained on the 20th March 1950. What is purpose or object to enact or to pass the Rajasthan Excise Act 1950? To enact for Rajasthan a uniform law relating to the import, transport, manufacture, sale, possession of the intoxicating liquor and of the intoxicating drugs. It is the object to pass or to enact the Rajasthan Excise Act 1950. To enact, to make law. To enact means to make law for Rajasthan a uniform law relating to the import, transport, manufacture, sale or possession of intoxicating liquor and intoxicating drugs. How many total sections in Rajasthan Excise Act 1950? 74. And this act is divided into how many chapters? In 10 chapters. And there are 2 schedules annexed with the Rajasthan Excise Act. In my opinion, the schedule first is repealed, omitted or repealed, whatever. Schedule first have been repealed. Only schedule second is in existence. And what is the subject matter of the schedule second? The one form of bond is provided under second schedule of the Rajasthan Excise Act. Bond to abstain from the commission of offense. अपराध करने से प्रवृत्त रहने का एक बंद पत्र निष्पादित किया जाता है. उस बॉन्ड का फॉर्मेट क्या होगा, उस बंद पत्र का प्रारूप क्या होगा, वो फॉर्मेट सेकेंड शेड्यूल ऑफ राजस्थान एक्साइज एक्ट में दे रखा है. What is the titles of the chapter first, chapter second, third, fourth, 1 to 10? Chapter first, title of the chapter first is preliminary and section 1 to 7 cover under chapter first. Chapter second is concerned to the control and establishment, section 8 to 10A cover under the chapter second. Chapter third is concerned to the import, export and transport, section 11 to 15. Chapter 4 is concerned to the manufacture, possession and sale, section 16 to 27. Chapter 5th is concerned to the duty, fees and surcharge, section 28 to 30AA. Chapter 6 is concerned to the license, permits and passes, section 31 to 38. Chapter 7 is concerned to the general provision, section 39 to 42. Chapter 8 is concerned to the power and duties of the officer, section 43 to 53. Chapter 9. Chapter 9 offences and penalties, section 54 to 70. And last chapter 10 is miscellaneous. What is the title of the chapter 10? Miscellaneous provision, section 71 to 74. क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ इसमें? चैप्टर 5 में ओके. एंड सरचार्ज टाइटल में से हटा दिया. कंफर्म हो ना, ऐसे मत कर देना. ड्यूटी एंड फीस, सेक्शन 28 टू 30AA. तो इस तरीके से ये चैप्टराइजेशन है. इसका टोटल 10 चैप्टर है और 74 सेक्शंस है. 2 शेड्यूल्स थे ओरिजिनल एक्ट में. शेड्यूल फर्स्ट रिपील या ओमिट हो चुकी है. केवल शेड्यूल सेकंड जो है वो इन्फोर्स में, और उसका कनेक्शन किसी एक सेक्शन से है. 66 या 66A होगा, जिसमें ऐसा प्रवृत्त रहने का बॉन्ड का प्रोविजन दे रखा है. उससे जो है वो कंसर्न है वो शेड्यूल. हाँ, ये एक मिनट. इंसर्टेड बाय द सब्स्टिट्यूटेड बाय द एडिंग ड्यूटीज एंड फीस बाय द राजस्थान. तो ये तो सरचार्ज ऐड हुआ इसमें. पहले ड्यूटीज एंड फीस थी, अभी इसके अमेंडमेंट के बाद जो है ड्यूटीज, फी एंड सरचार्ज है.
एंड सरचार्ज भी है इसमें, टाइटल जो है अमेंड हुआ है और इसमें पहले ड्यूटी एंड फी था, वर्तमान में क्या है, ड्यूटी फी एंड सरचार्ज है। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, बेसिकली ये दारू से रिलेटेड है। किससे? दारू या शराब जो है उससे रिलेटेड है ये लॉ। 1950 का अधिनियम संख्या 2 है ये। 20 मार्च 1950 को जो है इस अधिनियम को अनुमति है वो प्राप्त हुई। क्या प्रयोजन था इस अधिनियम को है वो पारित करने का? राजस्थान के लिए नशीली शराब और मादक औषधि द्रव्य जो है उनके आयात, उनका निर्यात, उनका परिवहन, विनिर्माण, विक्रय और कब्जा, इनके संबंध में विधि को समेकित और संशोधित, ऐसा पढ़ा नहीं हम लोगों ने, इंग्लिश में है क्या? बैरक देखना एक बार, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। ओके ओके, ठीक है। विधि का समेकन और संशोधन करना और इसके पश्चात दिए गए कुछ अन्य मामलों के लिए भी उपबंध करना। इंग्लिश में थोड़ा सा मिसिंग था मुझे लग रहा है। बेसिकली ये जो है नशीली शराब जो है, मादक औषधि द्रव्य जो है, भांग एटसेट्रा, उनके आयात, उनका निर्यात, उनका परिवहन, उनका विनिर्माण, उनका विक्रय और कब्जा, इनसे संबंधित जो है वो विधि को अधिनियमित करना और समेकित और संशोधित करना, और कुछ अन्य मामले जो है जो इंसिडेंटल है या आनुषंगिक है उनके लिए भी प्रावधान करना, ये राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 का जो है पारित करने का ऑब्जेक्ट या उद्देश्य है। टोटल 74 धाराएं इस अधिनियम के अंदर, 10 अध्यायों में विभाजित है ये अधिनियम। 2 अनुसूचियां इसके अंदर। प्रथम जो अनुसूची ये निश्चित है वो हो चुकी है, और द्वितीय अनुसूची उसमें क्या है, अपराध करने से प्रवृत्त रहने का बंद पत्र जो है उसका प्रारूप या फॉर्मेट है वो दे रखा है। चैप्टराइजेशन में आप देखेंगे अध्याय फर्स्ट का जो हेडिंग है वो प्रारंभिक है और धारा 1 से लेकर और 7 तक कवर होती है इसमें। अध्याय 2 नियंत्रण और स्थापन है, धारा 8 से लेकर और 10 का तक के प्रावधान कवर होते हैं। अध्याय 3 आयात, निर्यात और परिवहन है, धारा 11 से 15 तक के प्रावधान इसमें कवर होते हैं। अध्याय 4 विनिर्माण, कब्जा और विक्रय, धारा 16 से 27 तक इसमें कवर होते हैं। अध्याय 5 में शुल्क, फीस और अधिभार, धारा 28 से 30 का तक कवर होता है इसमें। नेक्स्ट जो है अध्याय 8 अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र और पास से रिलेटेड है, धारा 31 से कौन सा 7 है ये 6 है, सॉरी। अध्याय 6 जो है अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र और पास से संबंधित है। अध्याय 7 जो है उसमें साधारण उपबंध कुछ है वो दे रखे हैं, उसमें धारा 39 से 42 तक कवर होते हैं। नेक्स्ट जो है अध्याय 8 में अधिकारियों की शक्तियां और उनके कर्तव्य क्या रहेंगे, ये धारा 43 से लेकर और 53 तक में। अध्याय 9 बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, जिसमें अपराध और शास्तियां, अपराध जो है और उनके लिए पेनल्टीज, पनिशमेंट क्या रहेंगे, ये अध्याय 9 में दे रखा है, धारा 54 से लेकर और 70 तक है। और लास्ट जो अध्याय है अध्याय 10, जिसमें विविध प्रावधान है, प्रकीर्ण है वो प्रावधान है, मिसलेनियस, धारा 71 से लेकर और 74 तक के प्रावधान जो है इस लास्ट चैप्टर में कवर होते हैं। चैप्टर फर्स्ट, title of the chapter first is preliminary and section 1 to 7 cover under the chapter first. First of all, section 1, short title, extent and commencement. What is the short title of this act? The Rajasthan Excise Act 1950. And what about the extension? It extends to the whole of state of Rajasthan. Whole of the state of Rajasthan. Subsection 3, it shall came into force on such date the state government may by notification in official gazette appoint in this behalf. The date which is fixed or appointed by the state government upon such date this act came into force, and which date has been appointed by the state government as commencement of this act
1st July 1950. 1st July 1950 is the date of the commencement of this act. अध्याय 1 जो है प्रारंभिक, जिसका टाइटल है, और धारा 1 से लेकर और 7 तक इसमें कवर होंगे अध्याय 1 के अंदर। अधिनियम का संक्षिप्त नाम, उसका प्रसार या विस्तार और प्रारंभ होना। क्या है संक्षिप्त नाम इस अधिनियम का? राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 जो है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। इसका प्रसार या विस्तार कहां तक है? संपूर्ण राजस्थान राज्य में इस अधिनियम का जो है वो विस्तार है। लोकल लॉ है, ये है वो राजस्थान में लागू होने वाला लॉ है, और ये उस तारीख से प्रवर्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में क्या करे, नियत करे, निश्चित करे। उस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, निश्चित या नियत जो तारीख है, उस तारीख को ये अधिनियम लागू होगा। और राज्य सरकार ने अपनी धारा 1 की उपधारा 3 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किस तारीख को इस अधिनियम की लागू होने की या प्रारंभ की तारीख घोषित किया है? 1 जुलाई 1950। 1 जुलाई 1950 जो है वो इस एक्ट के लागू होने की या प्रवर्तन की तारीख है। सेक्शन 2 हैज बीन ओमिटेड। राजस्थान एक्साइज एक्ट 2 था, इसको ओमिट है वो या लोपित है वो कर दिया गया। Section 3 is concerned to the definitions. In this act, unless there is something repugnant in subject or context, first of all, definition of beer. 3(1) is concerned to the definition of beer. Beer includes ale, stout, porter, and all other fermented liquors made from malt. Beer includes the ale, stout, porter, and all other fermented liquors made from malt. धारा 3 जो है इसमें परिभाषाएं दे रखी है, और 3 का जो क्लॉज फर्स्ट है, खंड फर्स्ट है, इसमें बियर को परिभाषित कर रखा है। जब तक विषय और संदर्भ से कोई बात विरोध में नहीं हो, वो इस अधिनियम में ये जो शब्द आगे परिभाषित किए गए, इनका अर्थ इस परिभाषा के क्लॉज में दिया गया वो लगाया जाएगा। 3(1) में बियर को परिभाषित कर रखा है। बियर में एल, स्टाउट, पोर्टर और मॉल्ट से बनी अन्य समस्त खमीरित शराब वो क्या है, शामिल है या सम्मिलित है। इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि ये वाली चीजें जो है ये भी बियर शब्द में क्या है, कवर होगी। 3(2) is concerned to the definition of Abu area. Abu area means the territory comprised in the Abu Road Taluka of the Banaskantha district, the state of Bombay, as it existed immediately before the first day of the November 1956. Abu area means the territory comprised in the Abu Road Taluka. Abu Road Taluka, Abu Road Tehsil of the Banaskantha district of the state of Bombay, which exists just before the 1st November 1956. आबू क्षेत्र से बनासकांठा जिले के आबू रोड तालुका में समाविष्ट ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो 1 नवंबर 1956 से ठीक पहले जो है बंबई राज्य में विद्यमान था। ऐसा क्यों? आज की डेट में तो ये गुजरात में वो आबू, हालांकि राजस्थान में आ गया बाद में जो है वो आबू क्षेत्र जो है वो राजस्थान में शामिल हो गया था। 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था मोस्ट प्रोबेबली। बट जो है वो जब ये एक्ट बना था उस समय आबू एरिया किस स्टेट का पार्ट था? स्टेट ऑफ बॉम्बे का। बंबई राज्य जो वर्तमान में महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये सम्मिलित वो स्टेट ऑफ बॉम्बे था 1960 तक। मई 1960 तक जो है वो आज का जो महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये सम्मिलित बंबई राज्य कहलाता था। तो उस बंबई राज्य का बनासकांठा, जो बनासकांठा तो अब गुजरात में है आज की डेट में, तो उस बंबई राज्य के बनासकांठा जिले का जो आबू रोड तालुका का जो है वो क्षेत्र था, आबू रोड तहसील का जो क्षेत्र था वो क्या है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आबू एरिया जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट वन 3 क्लॉज 3 denatured. Denatured means the mixed with the such substance and by such process as may be prescribed under section 42 in order to render the any spirit unfit for human consumption, whether
as a beverage or as a medicine or in any other way whatsoever. Denatured means the mixed with such substance and by such process as may be prescribed under section 42 of this act to render the any spirit unfit for human consumption. Such mixture and the process is known as the denature, and human consumption whether as beverage or as medicine or in any other way whatsoever. विकृतिकृत, विकृतिकृत जो है इसको तीन के खंड 3 में परिभाषित कर रखा है। विकृतिकृत से किसी स्पिरिट को जिससे शराब बनता है उस स्पिरिट को पेय या औषधि या किसी भी अन्य रूप में मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए उसमें धारा 42 के अधीन विहित पदार्थ का और उस धारा में विहित प्रक्रिया द्वारा कोई मिश्रण यदि किया गया है तो वो क्या कहलाएगा, वो विकृतिकृत है, वो कहलाएगा। स्पिरिट के अंदर ऐसी कोई चीज मिलाना और इस प्रक्रिया से मिलाना जो धारा 42 में दे रखी है, जिससे वो क्या हो जाए स्पिरिट, वो स्पिरिट जो है वो पेय पदार्थ के रूप में, औषधि के रूप में या किसी अन्य रूप में मानव उपभोग के लिए क्या हो जाए, अनफिट हो जाए, अनुपयुक्त है वो हो जाए, उपयोगी है वो नहीं रह जाए, तो ऐसा मिक्सचर जो है, इस तरीके का मिश्रण करना जो है वो क्या कहलाएगा, वो डीनेचर या विकृतिकृत है वो करना कहलाएगा। 3A denature spirituous preparation means any preparation of denatured spirit or alcohol and includes the liquors, French polish and varnish prepared out of the such spirit or alcohol. Denatured spirituous preparation means the any preparation of the denatured spirit or denatured alcohol, and it includes the liquor, French polish, varnish prepared out of the such spirit or alcohol. विकृतिकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति, विकृतिकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति जो है ये धारा 3 के खंड 3 क में परिभाषित कर रखा है। सिर्फ विकृतिकृत स्पिरिट का या विकृतिकृत मद्यसार, ये जो इंग्लिश में अल्कोहल है उसी का हिंदी शब्द है ये। विकृतिकृत स्पिरिट या विकृतिकृत अल्कोहल या मद्यसार की कोई भी निर्मिति अभिप्रेत है, कोई भी निर्मिति अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसी स्पिरिट या मद्यसार से बनी लाख की पॉलिश, फ्रेंच पॉलिश, वार्निश आदि भी जो है वो शामिल है। नेक्स्ट, एक्साइजेबल आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन एग्जाम and maybe asked in the prelims paper. Excisable article means and includes. Excisable article means and include spirit, fermented liquor, any alcoholic liquor for human consumption, or denatured spirit or denatured spirituous preparation, or any intoxicating drug, still or other appliances for distillation, fermented wash or other material for distillation, any other article which the state government may from time to time declare to be an excisable article for the purpose of this act. And this heritage liquor है क्या, ये बैरक का पार्ट? ये हट गया है या क्या है, कुछ न कुछ है, इस पर डाउट है थोड़ा। नहीं है ना? तो 98 को तो कई वर्ष हो गए। ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क में, जहाँ कहीं से गूगल वगैरह से शायद लिया गया, वहाँ था ये, बट बैरक का पार्ट नहीं है वर्तमान में, डाउटफुल है। ये दे रखा होगा किसी ने गलती से, तो उससे वो पार्ट नहीं बन जाएगा। मुझे डाउट है इस पर कि ये नहीं है पार्ट इसका। These 5 things is considered the excisable article and include in the excisable article: spirit,
fermented liquor, alcoholic liquor for human consumption, denatured spirit, denatured spirituous preparation, any intoxicating drug, bhang, etc., still or other appliances for distillation, fermented wash or other material for distillation, and last one, any other article which declared by the state government as exciseable article for the purpose of Rajasthan Excise Act 1950. आबकारी योग्य वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी राय में। मुख्य परीक्षा में यदि पहला प्रश्न बना तो इसकी डेफिनेशन से आएगा। आबकारी योग्य वस्तु की क्या परिभाषा है? धारा 3 के खंड 4 के अनुसार आबकारी योग्य वस्तु से निम्नलिखित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। क्या? स्प्रिट, खमीरित शराब, कोई मद्यसारिक शराब जो मानवीय उपभोग के लिए, विकृतिकृत स्प्रिट और विकृतिकृत स्प्रिट युक्त निर्मित, जो आपने इससे पहले वाले क्लोजेस में डेफिनेशन पढ़ी है 3 और 3A, वो भी एक्साइजेबल आर्टिकल में क्या है? कवर होती है। विकृतिकृत स्प्रिट भी है वो कवर होती है और विकृतिकृत स्प्रिट युक्त निर्मित भी है वो क्या है? आबकारी योग्य है वो वस्तु है। कोई मादक औषधि द्रव्य लाइक भांग आदि, भभका या आसवन के लिए कोई अन्य साधित्र, डिस्टिलेशन प्रोसेस जिससे होता है भभका से या अन्य किसी है वो उपकरण से या साधित्र से, वो भी क्या है? आबकारी योग्य वस्तु है। खमीरित वॉश और आसवन के लिए कोई अन्य पदार्थ, ये भी आबकारी योग्य वस्तु है। और कोई अन्य वस्तु जिसे राज्य सरकार समय समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ क्या घोषित करे? आबकारी योग्य वस्तु घोषित करे। अन्य कोई वस्तु जो शुरू के 4 में कवर नहीं हो रही है, जिस वस्तु को राज्य सरकार इस राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के प्रयोजन के लिए आबकारी योग्य वस्तु घोषित करे, वो अन्य वस्तु भी, अन्य पदार्थ भी क्या होगा? वो भी आबकारी योग्य वस्तु के अंदर है, वो कवर होगा। हैं? कब ऐड हुआ ये? 1957 में हुआ। फिर बाद में हट तो नहीं गया है? अगर होता तो फिर ये एक्चुअली ऑनलाइन जो मिल रही है ना, हाँ, वो पुराना पढ़ा था जहाँ से उनको मिल गया, उसका कॉपी पेस्ट किया उन्होंने। वो होता तो फिर हिंदी में भी होता है, हिंदी में नहीं मिला मुझे कहीं पे भी, तो थोड़ा डाउट हो गया कि ये शायद वो नहीं हो इसका पार्ट। ये भैया मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, याद करना पड़ेगा आपको। कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्टिलेशन एटसेट्रा के अंदर जो है वो काम आती है, उनको साफ करने में काम आती है एटसेट्रा। जो है कचरा वगैरह आ गया है ना, उसको छांट दिया जाए उसमें से, उस जरिया वगैरह हो सकता है या अन्यथा कोई ऐसी चीज़ है वो हो सकती है जिससे प्योर माल ही है वो पीने के लिए मिले, इस तरीके का कुछ है वो हो सकता है। यस। सेक्शन 3 क्लॉज 5 डेफिनेशन ऑफ एक्साइज कमिश्नर। Excise commissioner means the excise commissioner appointed by state government under this act. What is the definition or meaning of excise commissioner which is appointed by the Rajasthan state government as excise commissioner under Rajasthan Excise Act 1950? आबकारी आयुक्त 3(5) में परिभाषा दे रखी है इसकी, धारा 3 के खंड 5 में। क्या परिभाषा है? आबकारी आयुक्त से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त आबकारी आयुक्त से, राज्य सरकार ने इस आबकारी अधिनियम 1950 के प्रयोजन के लिए जिस अधिकारी को आबकारी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया वो क्या होगा? आबकारी आयुक्त होगा। वो हाईएस्ट ऑफिसर है स्टेट का। एक्साइज कमिश्नरेट जो उदयपुर में है उसका जो हेड होता है, जो मुख्य अधिकारी, वो क्या कहलाता है? एक्साइज कमिश्नर कहलाता है। 3(6) is concerned to the definition of excise duty. Excise duty means any duty of excise imposed by or under this act on exciseable article manufactured, produced in those parts of the state of Rajasthan to which this act extends. Excise duty means the duty of the excise imposed by or under this act on exciseable article manufactured or produced
in those parts of the state of Rajasthan to which the provision of the Rajasthan Excise Act 1950 extends, and it extends the whole territory of the Rajasthan. धारा 3(6) में जो है आबकारी शुल्क जो है उसकी परिभाषा दे रखी है। आबकारी शुल्क से राजस्थान राज्य के उन भागों में जिस पर इस अधिनियम का प्रसार है, विस्तार है, उन है वो राज्य क्षेत्र में विनिर्मित या उत्पादित, उन राजस्थान राज्य के भागों में विनिर्मित और उत्पादित किसी आबकारी योग्य वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित कोई आबकारी शुल्क है वो अभिप्रेत है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब इस एक्ट के अंतर्गत अधिरोपित की गई हो, किस पर? एक्साइजेबल आर्टिकल पर, किस पर? आबकारी योग्य वस्तु पर है वो अधिरोपित है वो की गई हो, और किन राज्य क्षेत्रों के अंदर जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, उन राज्य क्षेत्र के भीतर जो है उनके आबकारी योग्य वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग पे या उनके प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे या प्रोडक्शन पे जो है, विनिर्माण पर या उत्पादन पर जो है वो किसी प्रकार की वो आबकारी शुल्क है वो लगाया गया, तो वो क्या कहलाएगा? वो आबकारी शुल्क कहलाएगा इस एक्ट के पर्पज के लिए। 3(7) is concerned to the definition of excise officer. Excise officer means any officer or person other than the excise commissioner. Any officer or person other than the excise commissioner appointed under section 9 or invested with the power of an excise officer under this act. Excise officer means the any officer or the person other than excise commissioner appointed under section 9 of this act or invested with the power of an excise officer under Rajasthan Excise Act 1950. Such officer or person is known as excise officer. आबकारी अधिकारी शब्द यदि यूज दिया जाए, आयुक्त नहीं होकर और उसके साथ अधिकारी शब्द हो, क्या मतलब होगा उस वो धारा 3 के खंड 7 के अनुसार आबकारी अधिकारी का? आबकारी अधिकारी से आबकारी आयुक्त के सिवाय या उसको छोड़कर धारा 9 के अधीन नियुक्त या इस अधिनियम के अधीन आबकारी अधिकारी की शक्तियों से विनीत किया गया कोई अधिकारी या व्यक्ति है वो क्या होगा? वो आबकारी अधिकारी होगा। आबकारी आयुक्त जो है आबकारी अधिकारी में कवर नहीं होता है, वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, उसको छोड़कर, आबकारी आयुक्त को छोड़कर अन्य कोई भी अधिकारी जो है जिससे इस एक्ट के सेक्शन 9 में नियुक्त किया गया है आबकारी अधिकारी के रूप में, या इस अधिनियम के अधीन जो है आबकारी अधिकारी की शक्ति जिस व्यक्ति को दी गई है वो अधिकारी या वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो आबकारी अधिकारी कहलाएगा इस धारा 3 के खंड 7 के अंतर्गत। 3(8) definition of excise revenue. Excise revenue means the revenue derived or derivable from any payment, duty, fee, tax, fine other than a fine imposed by a court of law or confiscation imposed or ordered under the provision of this act or of any other law for the time being in force relating to liquor or intoxicating drugs. Excise revenue means the revenue derived or derivable from any payment, duty, fee, tax, fine. Fine is imposed by the excise officers, not by the court of law. If the fine is imposed by the court of law, that is not included in excise revenue. Fine imposed by the excise officers, by the excise commissioner or other excise officer, the such fine is also included in the excise revenue. And the confiscation imposed or ordered under the Rajasthan Excise Act 1950 or by any other law for the time being in force relating to the liquor or intoxicating drugs. आबकारी राजस्व जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी मेन एग्जाम के लिए मुख्य परीक्षा में डेफिनेशन से यहां से प्रश्न आ सकता है या प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। कहां डेफिनेशन दे रखी है एक्साइज रेवेन्यू की, या एक्साइज रेवेन्यू में क्या इंक्लूड है या नहीं है, इस तरीके का पूछा जा सकता है। एक्साइज आबकारी राजस्व से है वो क्या अभिप्रेत है? ऐसा राजस्व अभिप्रेत है या एक्साइज आबकारी राजस्व से अभिप्रेत है इस अधिनियम के या शराब या मादक औषधि द्रव्य से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य कोई भुगतान, कोई शुल्क, कोई फीस, कोई कर और विधि के न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने से भिन्न जुर्माना या अधिरोपित या आदेशित अधिहरण से प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाला जो है वो राजस्व है वो क्या है? वो आबकारी राजस्व है।
इस राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 या जो है वो शराब और मादक औषधि द्रव्य से संबंधित कोई अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भुगतान के रूप में, शुल्क के रूप में, फीस के रूप में, कर के रूप में या जुर्माने के रूप में, जो विधि के न्यायालय द्वारा है वो अधिरोपित जुर्माने से भिन्न हो, ऐसे जुर्माने के रूप में या अधिहरण के रूप में, अधिहरण के रूप में या अधिहरण के बदले जो है वो कोई किसी प्रकार का अमाउंट है वो पे किया जाए, कोई राशि है वो दी जाए, तो वो क्या कहलाती है, या राजस्व के जो है वो प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा, आबकारी राजस्व है वो कहलाएगा। 29 नहीं, अधिहरण के लिए कॉन्फिस्केशन है और अधिग्रहण के लिए एक्विजेशन है, दोनों के लिए अलग अलग। एक्विजेशन का मतलब टू ऑब्टेन, प्राप्त करने से, और कॉन्फिस्केशन का मतलब जो है वो फॉरफीचर जैसा है, टू वेस्टेड इन द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट। संपहरण और अधिहरण एक जैसा ही है, प्रभाव उनका। संपहरण के लिए फॉरफीचर है, वर्ड क्या है, फॉरफीचर, और जो है वो अधिहरण के लिए कॉन्फिस्केशन है, दोनों का प्रभाव जो है वो एक जैसा है। 39 is concerned to the definition of export. Export means to take out, of the those parts of the state of Rajasthan to which this act extends. निर्यात जो शब्द है इस एक्ट के अंतर्गत, निर्यात का वैसे फॉरेन कंट्री से कंसर्न होता है, किससे होता है, किसी दूसरे है वो देश से है वो होता है, बट परंतु यहां निर्यात का मतलब क्या है, राजस्थान से बाहर गुजरात, एमपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा एटसेट्रा में कोई सप्लाई की जाए तो वो भी किस में आएगा, एक्सपोर्ट में है वो कवर होगा। निर्यात से राजस्थान राज्य के उन भागों से बाहर ले जाना अभिप्रेत है जिनमें इस अधिनियम का प्रसार है। राजस्थान की सीमाओं से बाहर यदि एक्साइजेबल आर्टिकल ले जाया जाए या भेजा जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो निर्यात है वो कहलाएगा। तो चीज तो राजस्थान में से गई है ना, हाँ बात समझ में आ गई, बट यदि राजस्थान से निर्यात विदाउट परमिशन करे कोई व्यक्ति, यहाँ का कोई कॉन्ट्रैक्टर एटसेट्रा, इट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। एक्सपर्ट हुआ कहां से है, यहीं से राजस्थान से हुआ है, इसलिए यह अपराध है। 310 इज कंसर्न टू द डेफिनेशन ऑफ प्रिवेंटेड, ट्रेन है ना, fermented liquor. 310 is concerned to the definition of fermented liquor, means wine, पच्चारी और पचवाई, and fermented tadi and any other liquor that may from time to time be declared by the state government to be fermented liquor. Fermented liquor means the wine, pachwai and fermented toddy and any other liquor that may from time to time declared by the state government to be fermented liquor. खमीरित शराब, खमीरित शराब से ऐसी वाइन या पचवई और खमीरित ताड़ी और अन्य कोई शराब अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर खमीरित शराब जो है वो घोषित की जाए।